Hello children, welcome to Sunira's physics class. We are going to discuss Ohm's law today. In this topic, we are going to learn about the relationship between the potential difference and the current through a metallic wire. In 1827, a German physicist named George Simon Ohm found the relationship between the potential difference across a metallic wire and the current flowing through it. Now, this was called as Ohm's law, this finding. The potential difference, as we already know, what is potential difference? In the previous class, I have already explained about potential difference. Once again, I am telling you, potential difference is the amount of work done to move a charge from one point to another. This is what is potential difference. Okay, and as we learned that this is provided by a cell or a battery in a circuit, right? Or also by an electric generator. Potential difference की यूनिट क्या है? वोल्ट. तो ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? ओम्स लॉ हमें बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है across the ends of a metallic wire in an electric circuit is found to be directly proportional to the current flowing through the metallic wire. Potential difference is directly proportional to the current flowing through the metallic wire, and across that metallic wire you have a potential difference which is directly proportional to the current flowing through the wire, provided, this is a very very important sentence, provided the temperature remains constant. अगर टेम्परेचर बदलेगा तो ये कांस्टेंट नहीं होगा. अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ये दिखा रहा है कि I अगर बढ़ेगा तो V भी लीनियरली बढ़ेगा, है ना? तो वी कैन राइट डाउन. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हमें रिमूव करना है तो हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करते हैं. V by I equals to R, which is a constant. अब ये R क्या है? R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये जो R है इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन मेटालिक वायर. This is a constant for that given metallic wire provided temperature is a constant. Temperature remains the same, it does not change. This is what is Ohm's law. Very simple. Potential difference across a metallic wire is directly proportional to the current flowing through the wire provided temperature remains the same. V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर सेम रहता है, ये कंडीशन. और वो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस, दैट इज R, which is the property of a conductor. अब क्या होता है, हर एक कंडक्टर एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. उनके चार्जेस के बहने में, चार्जेस के एक जगह से दूसरे जगह जाने में वो रुकावट पैदा करता है, उसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस. सो वी से रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which resists the flow of current or provides hindrance to the flow of charges. अब ये होता क्यों है? होता इसलिए बच्चों क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के थ्रू जा रहे होते हैं
तो वो कोलाइड करते जाते हैं किससे? आयन से, एटम से, जो कि प्रेजेंट हैं कंडक्टर में। तो क्या होता है, ये जो स्मूथ फ्लो होना चाहिए चार्जेस का वो नहीं हो पाता, जिस कारण ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड होता है। और इसको हम एक तरह से कह सकते हैं फ्रिक्शन, क्योंकि कोलिजन ब्रिंग्स फ्रिक्शन। सो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स with the ions and the atoms in the conductor, this resistance is provided. अब ये जो resistance है वो same नहीं रहता है, it varies with the conditions. Okay? R किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हम अभी पढ़ेंगे। इसकी SI यूनिट जो होती है R की, रेसिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ रेसिस्टेंस की आप लोगों के लिए। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which provides endurance to the flow of charges or resists the flow of charges. ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस की क्या होती है? ओम। ये हम इस ग्रीक लेटर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? दिस इज द सिंबल। ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर मुझे ओम को डिफाइन करना है, अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज 1 ओम, हाउ विल यू डिफाइन 1 ओम? सो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम क्या होता है? अब मैंने आपको बताया था V/I इक्वल्स टू R। तो R क्या है? ओम। रेसिस्टेंस, तो मैं क्या लिखूंगी? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। आप ये देखो, मैंने ये जो डेफिनेशन मैं अभी बनाऊंगी 1 ओम की, वो इसी फॉर्मूले से बना लूंगी। मैं क्या कहूंगी? 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस, ये देखिए ध्यान से, 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस is said to be provided when 1 volt of potential difference exists across the ends of the wire and 1 ampere of current flows through it. Okay, so from this formula itself you can define 1 ohm. अब रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? R is directly proportional to the length of the wire. जितनी ज़्यादा लेंथ होती जाएगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि जब चार्जेस उसके थ्रू, वायर के थ्रू जाते हैं, तो अगर लेंथ बढ़ा दी जाएगी तो कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स of the charges with the ions and with the atoms of the conductor will go on increasing. So as the length of the wire increases, what will happen? The resistance also increases. इसलिए हम कहते हैं R is directly proportional to the length of the wire. ठीक है? तो ये एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी चीज, तो जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर हम चलिए कैपिटल A ले लेते हैं। ये जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अगर तो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, वायर का, तो क्या होगा? जो चार्जेस हैं
उनको ज़्यादा जगह मिल जाएगी जाने के लिए। अब आप फ्री वे पे जा रहे हैं, ज़्यादा जगह है, कम क्राउड है, आप स्पीड में जा सकते हैं, आराम से स्मूथली जा सकते हैं, है ना। क्राउडेड रोड हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो क्या होगा, चार्जेस को कम जगह मिलेगी उसमें से, कंडक्टर में से जाने के लिए, और कोलिजन्स ज़्यादा हो जाएंगे। सो इस कारण से हम कहते हैं कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे जैसे लेंथ बढ़ेगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस को ज़्यादा जगह मिलेगी आराम से चलने के लिए, है ना। तो कोलिजन्स कम हो जाएंगे, कोलिजन कम हो जाएंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। अब आ जाती है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, हम लिख सकते हैं L/A। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी कैन राइट डाउन R इक्वल्स टू रो L/A। अब रो क्या है, रो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। This electrical resistivity, if we write down the unit of it, we can say rho is, इसको electrical resistivity को हम rho कहते हैं। It is slightly tilted P you can say, or you can write it like this also. Okay, so this is equal to RA by L, which is ohm मीटर स्क्वायर बाय मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की, ओम मीटर। ओम मीटर इसकी यूनिट है। बिफोर वी लर्न अबाउट ऑल दिस, लेट्स डू वन सिंपल न्यूमेरिकल, ओके, टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर, राइट। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द न्यूमेरिकल फॉर यू। Let us take a wire of length L, area of cross section A, having a resistance of 4 ohm. चलो, okay, let me put it this way. What will be the resistance of another wire of same material? चलिए, मटेरियल हमने सेम ले लिया, दूसरी वायर मैंने क्या लिखा, एक वायर ली जिसकी लेंथ मैंने L ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया A, उसका रेसिस्टेंस है 4 ओम उस वायर का, ठीक है। वही मटेरियल की एक और वायर ले ली हमने, अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2। L/2 का क्या मतलब हुआ, हाफ ऑफ द प्रीवियस लेंथ, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज ट्वाइस ऑफ ए। ये मेरे को क्वेश्चन मिला, राइट। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, है ना। फिर देखूंगी कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक दूसरी वायर का रेसिस्टेंस जिसकी मेरे पास लेंथ दी गई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसका सॉल्यूशन मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी। मेरे को फॉर्मूला पता है, R इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। ये तो भाई हो गया फर्स्ट वायर का। सेकेंड वायर को मैं R' ले लेती हूँ जिसका रेसिस्टेंस मुझे निकालना है। दिस इज इक्वल टू रो L। अब ये रो जो है रेसिस्टिविटी
वो तो सेम मटेरियल की सेम रहेगी. रो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एल और ए पे, रो डिपेंड नहीं करता. रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे. रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे. नेचर ऑफ मटेरियल इन दोनों केसेस में मैं सेम ही ले रही हूँ. ठीक है, तो रो सेम रहेगा. एल क्या मुझे दिया गया है, हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया गया है, 2a. तो ये क्या बन गया मेरा, रो एल बाय 4a बन गया कि नहीं, है ना. अच्छा, अब फर्दर हम क्या करेंगे बताइए. ये आ गया रो एल बाय 4a, है ना. रो एल बाय ए मेरा पहले वाले रेसिस्टेंस का जो वायर जो मैंने ली है सेम मटेरियल की, तो वो कितनी मुझे क्वेश्चन में दी गई है, आर रो एल बाय ए इक्वल्स टू 4 ओम दे रखी है. दूसरे रेसिस्टेंस, दूसरे वायर का जो जिसका हमें रेसिस्टेंस निकालना है वो क्या होगा, रो एल बाय 4a. अब रो एल बाय ए तो मेरा क्या आ गया 4, और 4 ही नीचे आ रहा है, क्या मिल गया मुझे 1 ओम. इसका मतलब न्यू रेसिस्टेंस हमारा क्या आ गया 1 ओम. So this is very simple. See what I have done is I read the question properly. I understood what they are asking me. मेरे से पूछा क्या जा रहा है. अब जो पूछा जा रहा है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने फॉर्मूला लगाया. उसमें मैंने देखा मुझे क्या क्या दिया हुआ है. मुझे पहली वायर का रेसिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 4 ओम, है ना. दूसरी वायर का रेसिस्टेंस मुझे निकालना है जिसमें कि मुझे लेंथ दी गई है जो कि हाफ है पहले वाली वायर की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है. तो मैंने फिर से फॉर्मूले में वही चीज़ डाल दी, L बाय 2 कर दिया और 2a कर दिया. तो L बाय 2 एंड 2a क्या आ गया बेटा आपका, रो L बाय 4a आ गया. अब रो L बाय a, हाफ ऑफ द क्वेश्चन यू ऑलरेडी नो, इट इज गिवन एज 4 ओम. वो मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और 4 मेरे पास ऑलरेडी है, 4 4 कट गया, क्या मिला आपको 1. So this is how we find out the new resistance. Okay, so please practice more numericals. I'll be giving you more numericals and then you practice. Anywhere you have a problem, let me know. Thank you.